آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پاک فوج حکومت اداروں کو دہشت گردوں کی مالی اعانت کے خلاف قانونی اقدامات میں مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ آرمی چیف نے بغیر کسی رکاوٹ کے نیشنل ایکشن پلان کے تیز نفاذ کی ضرورت پر زور دیا۔ فورم کا ہر قیمت پر بلا تفریق دہشت گردی کو ختم کرنے کا عزم۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والے ملک دشمن عناصر کے خلاف ریاست پوری طاقت سے نپٹے گی۔ پاکستانی مصنوعات پر 29% امریکی ٹیرف۔ امریکہ کے ساتھ اضافی ٹیرف کے معاملے پر مذاکرات کا فیصلہ۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ قائم کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد عارف سے 12 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی کے کنوینر مقرر۔ سیکرٹری تجارت جواد پال کو ورکنگ گروپ کا کنوینر مقرر کیا گیا ہے۔ اور عالمی معاشی جنگ میں چین کا جوابی وار، امریکہ پر 34% ٹیرف عائد کر دیا۔ امریکی کمپنیوں کو بھی نشانہ بنایا، 16 کمپنیوں کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا۔ سافٹ ویئر، ٹیکنالوجی اور دیگر اشیاء کی برآمدات پر پابندی لگ گئی، 11 امریکی کمپنیاں ناقابل اعتماد قرار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پھر احتجاج کی دھمکی، کہا NFC میں جو صوبے کا حق ہے فوری حوالے کیا جائے، حق نہ ملا تو سڑکوں پر نکلیں گے۔ KP ہاؤس اسلام آباد میں پریس کانفرنس، علی امین گنڈاپور نے کہا وفاقی حکومت نے دہشت گردی پر کوئی جواب نہیں دیا، نہ سنجیدہ ہے، کسی بھی افغان شہری کو زبردستی نہیں بھیجیں گے، جنگ جیتنے کے لیے لوگوں کے دل جیتنا ہو۔ اور کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر خاتون قتل، فقیرہ گوٹ سائٹ سپر ہائی وے پر موٹر سائیکل سوار ملزمان نے راہگیر میاں بیوی کو لوٹنے کی کوشش کی، مزاحمت پر فائرنگ سے 25 سال کی سائمہ دم توڑ گئی۔ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی بدولت کھڑی ہے، صدر اور بلاول بھٹو نے کہہ دیا نئی نہروں کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے حکومت گر جائے، کیا ہم ان کے کہنے پر چلیں گے؟ ہم تو منصوبہ رکھوائیں گے۔ آئین کہتا ہے جب تک تمام صوبے متفق نہ ہو پانی کا کوئی منصوبہ نہیں بن سکتا۔ ایرسا کسی کے کہنے پر پورے ملک کو ڈبو رہا ہے، جن بیساکھیوں پر یہ منصوبہ بنایا گیا وہ گر گئے۔ صدر نے کسی سمری پر دستخط کیے، نہ منظوری دی۔ صدر کے پاس کسی کو کام سے روکنے کا اختیار نہیں۔ نہروں کے منصوبے پر گزشتہ سال بات ہوئی، ایوان صدر کی پریس ریلیز موجود ہے۔ صدر نے ہدایت کی تھی منصوبے کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں۔ نون لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ کہتے ہیں اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ صوبوں اور وفاق کے حق میں جو کام نہیں ہوگا وہ نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی نہروں کے منصوبے کے خلاف ہے تو پھر یہ معاملہ کہیں نہیں پہنچ پائے گا۔ ٹرمپ ٹیرف نے امریکی معیشت ہلا کر رکھ دی۔ امریکی سٹاک مارکیٹ میں کورونا کے بعد تاریخی مندی، مارچ 2020 کے بعد ایک دن میں سٹاک مارکیٹ میں سب سے بڑی کمی، تمام بڑے انڈیکسز میں تقریباً 6% کمی ہوئی۔ سرمایہ داروں کے $3.1 ٹریلین ڈوب گئے۔ JP مورگن کا کہنا ہے ٹیرف کے فیصلے سے امریکی معیشت تقریباً 60% کساد بازاری کا شکار ہو سکتی ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل کمی، 2 دنوں میں تقریباً 10% کمی آئی۔ ٹیرف سے جن ملکوں کو خدشات ہیں وہ امریکہ میں فیکٹری لگائیں، انہیں کوئی ٹیرف نہیں دینا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کوئی ملک اچھی پیشکش کرے گا تو ٹیرف پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ٹک ٹاک معاہدے کی منظوری کی صورت میں چین کو ریلیف مل سکتا ہے۔ ٹک ٹاک معاہدے کے بہت قریب ہے۔ روس اور یوکرین امن کی جانب بڑھ رہے ہیں، حوثی حملے کر رہے ہیں اور ایران ان کی مدد کر رہا ہے۔ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ ایلان مسک چند ماہ میں حکومتی مشاورتی کردار چھوڑ سکتے ہیں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف نے بجلی کے نرخ میں ریکارڈ کمی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ نواز شریف نے گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے پر وزیر اعظم کی ٹیم کو بھی سراہا۔ نواز شریف نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے ملک درست سمت پر گامزن ہو چکا۔ بجلی سستی کرنے سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔
मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने पर नेपरा में समात मुकम्मल। मुख्तलिफ एडजस्टमेंट से ₹5.03 फी यूनिट का फौरी रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन नेपरा कहते हैं तीसरी समाही एडजस्टमेंट की अभी दरखास्तें आई हैं जिससे मजीद कमी का इम्कान है। अवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जाएगा। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक इस साल की सब्सिडी का हजम 266 अरब रुपए हो जाएगा। हुकूमती मनसूबाबंदी से गर्मियों में अवाम को रिलीफ मिल रहा है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2400 अरब रुपए तक है। वजीर आजम और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ दिन रात काम किया। हम वजीर आजम और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिजली की कीमतों में कमी पर बिजनेस कम्युनिटी का खैर मकदम। कहा हम आपको जल्द 25 से 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे। पूरी उम्मीद है इस टैरिफ में कमी से तरक्की का पहिया मजीद तेज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने IBPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। कहा जितनी भी हुकूमतें आईं सबने IBPs की मुआवनत की। जिन्होंने कौम से फ्रॉड किया उन्हें सामने लाया जाए। IBPs के इशू को जमात इस्लामी ने ही टेकअप किया, हुकूमत पर दबाव बढ़ाया। MQM तो इस हुकूमत से किसी मुतालबे की सलाहियत ही नहीं रखती। इसे कहा जाता है उठ जाओ तो उठ जाती है, बैठ जाओ तो बैठ जाती है। मुल्क की दरामदात में कमी, बरामदात में इजाफा। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। मार्च में पाकिस्तानी बरामदात 5.1% इजाफे के साथ 2 अरब 61 करोड़ 70 लाख डॉलर रही। फरवरी में बरामदात 2 अरब 49 करोड़ डॉलर थी। मार्च 2024 के मुकाबले में बरामदात में 1.95% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामदात 1.1% कम होकर 4 अरब 73 करोड़ 60 लाख डॉलर रही। मार्च 2024 के मुकाबले में 2.45% कमी आई। मार्च में तिजारती खसारा 7.83% कम होकर 2 अरब 11 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। गुज़िश्ता साल के निस्बत तिजारती खसारे में 7.39% कमी रिकॉर्ड की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। सदर मुमलिकत से सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी की दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतियाब करे। पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। सदर जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। कराची पुलिस के अफसर पर पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कराची की मकामी अदालत ने इब्राहिम हैदरी के स्टेशन इन्वेस्टिगेशन अफसर इब्रार शाह को जमानत पर रिहा कर दिया। मुलजिम इब्रार शाह पर सदर आसिफ अली जरदारी से मुतालिक सोशल मीडिया पर नाजेबा अल्फाज लिखने का इल्जाम है। कराची सुपर हाईवे पर गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां वाटर बाउजर आग बुझाने में मसरूफ। शोलों ने फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों को लपेट में लिया। भारी माली नुकसान। लाहौर हाई कोर्ट का पानी के ज़िया पर हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने पानी ज़ाया करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। अदालत का LDA को पानी की रिसाइकलिंग के बगैर नक्शे की मंजूरी रोकने का हुक्म। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने की तजवीज़। अदालती हुक्म में कहा गया ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर FIR के बजाय भारी जुर्माने किए जाएं। लाहौर में पानी की सतह कम होना तशवीशनाक है। देहात में भी वाटर इमरजेंसी लगाई जाए। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के लिए पेशावर के नासिर बाग जुमा खान में आर्जी कैंप कायम। कैंप में अफगान बाशिंदों की वापसी की तैयारियां। नादरा गाड़ी पहुंचा दी गई। हुकाम के मुताबिक कैंप में नादरा के 20 काउंटर्स कायम किए गए। अफगान बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन होगी। अफगान बाशिंदों की रिहाइश का इंतजाम भी किया गया। कैंप से अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजने का अमल फिर से शुरू होगा। रावलपिंडी में अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयां। 50 से ज्यादा अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। भारत में मुसलमानों की खरबों की अमलाक हड़पने की राह हमवार। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी मुतनाज़े वक्त तकमीमी बिल मंजूर कर लिया। कांग्रेस सदर का मुतनाज़े बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान।
कांग्रेस रुकन कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन अल्लाह की है और इसे फरोख्त नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूफ अब्बास ने कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी ने भी मुसलमानों की हिमायत नहीं की। राज्यसभा में शिवसेना के रुकन संजय रावत की भी मुतनाज़ तरमीमी बिल की मुखालफत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बैंकॉक में बांग्लादेश की बुरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद नरेंद्र मोदी की डॉक्टर यूनुस से ये पहली मुलाकात थी। मुलाकात तकरीबन 40 मिनट जारी रही। भारत और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी कम करने पर बातचीत हुई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोन पर बात। दोनों ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरब मीडिया का कहना है ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। गजा में इसराइली सफाकियत थम न सकी। इसराइल के गजा पर ताज़ा तरीन हमलों में 112 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की गजा सिटी में स्कूल पर बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में 71 फलस्तीनियों की शहादतें और दर्जनों जख्मी हुए। खान यूनिस में घर पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान शुमाली गजा से 1,35,000 से जायद फलस्तीनियों का इनखला हो चुका है। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 50,523 से तजावुज कर गई है। 1,638 जख्मी है। जंगी जुनून में मुब्तला सेहूनियों ने कि लेबनान पर भी हमले। सिदोन पर घर पर बमबारी में 3 लेबनानी शहीद हो गए। Yet, despite these discussions, the Council has failed to provide relief to the innocent Palestinians suffering from indiscriminate bombings, starvation, displacement, and collective punishment, all of which are blatant violations of international law and international humanitarian law. पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा पर खामोशी तोड़कर अमली इक़दामात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और जंगबंदी मुआहरे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल ने जंगबंदी मुआहरे के बाद मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के साथ संगीन मजाक है। हम ऐसे इदारे का हिस्सा नहीं बन सकते जो महज तमाशाई बना रहे। कतर गेट करप्शन स्कैंडल में नेतन्याहू के गिर्द घेरा तंग होने लगा। 2 सीनियर मुशीर गिरफ्तार। नेतन्याहू पहले ही बदउनवानी के इल्जामात में एक अलग मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के 2 सीनियर मुशीर कतर के साथ मुबैना गैर कानूनी ताल्लुकात के इल्जाम में गिरफ्तार। 3 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नेतन्याहू का कहना है उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये सियासी मुकदमात है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है टिक टॉक पर मुआहदे के बहुत करीब है। मुआहदे की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। सोशल मीडिया ऐप टिक टॉक को अमरीका में पाबंदी से बचने के लिए कल तक अमरीकी खरीदार तलाश करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में टिक टॉक पर पाबंदी का फैसला 5 अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया था। स्याह बादलों से भरा आसमान। अमरीकी रियासत हवाई के नेशनल पार्क में कैलावा का आतिशफशां रात भर अंगारे उगलता रहा। कैमरे की आंख ने मनाजर कैद कर लिए। सुबह तक जारी आतिशफशां के धुएं मीलों दूर तक गए। कैलावा गुज़िश्ता दिसंबर से अब तक वक्फे से 100 बार फट चुका है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें तीसरे वनडे में कल आमने सामने होंगी। कौमी स्क्वाड का बेओवल में इंडोर प्रैक्टिस सेशन। बारिश के बायस कौमी टीम ने इंडोर नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। 3 मैच की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। कराची में PSL की रौनकें लगना शुरू। नेशनल स्टेडियम के बाहर सीजन 10 का काउंटडाउन टाइम नस्ब कर दिया गया। मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ 7 दिन रह गए। कराची का मैदान 5 PSL मुकाबलों की मेजबानी करेगा।
HBL PSL 10 की ऑनलाइन टिकट्स फरोख्त होना शुरू। चारों वेन्यू पर टिकट की कम से कम कीमत 650 रुपए। रावलपिंडी में इफ्तिताही मैच के टिकट 1000 से 8500 रुपए में मिल रहे हैं। फाइनल के टिकट 1500 से 12500 रुपए में दस्तयाब। मुल्क भर में शायकीन फिजिकल टिकट स्पीड से खरीद सकेंगे। मेगा इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से होगा। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के वार्म अप मैच में पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग। लाहौर में थाईलैंड को 78 रन पर ढेर कर दिया। नशरा सिंधु के 4 शिकार, डयाना बेग और रामीन शमीम की 2-2 विकेटें। और बॉलीवुड लेजेंड मनोज कुमार 87 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मनोज कुमार तवील अरसे से अलील और मुंबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। आखिरी रसूमात कल सुबह अदा की जाएंगी।